छोड़ो, ये बात कुछ नहीं होगा, छोड़ो उसको। मैं पढ़ाऊंगा जरूर, तो साला लाइट जाए या कुछ भी हो, भागेंगे ठीक है। मौत आ जाने दो, मौत को भी देख लेंगे आज। ट्राई थ्रो कैच, ठीक है। नाउ द now I'm starting. Fine. So I said last time we have to have Sumil chalo. First of all, Sumil, we have to have a sound definition. What is oops? A very illogical question, but it's an impressive question. It's impressive. Why oops? Why you wanna go for oops? So if you don't go for oops, how you can have a coding pattern and coding a standard and a word called classification? If you don't go for learning oops, how you can go improvement of code? How you can have a improvement of a code? आपको खड़ा करता है किसी एक को भी, मुझे ये जवाब नहीं मिलता। स्ट्राइक रेट ठीक करो, स्ट्राइक रेट। Why you wanna go for oops? Why you wanna go for grammar? Why you wanna go for RDMS? If I know grammar, better grammar, I can talk in different ways. I can have a manner in my word and my sentences. The purpose of learning a oops, I can improve my coding pattern, call a standard. मेन पॉइंट लिखते चलो। Why do we go with oops? Because अब जो मेरी तैयारी चल रही है 10-12 बच्चों के लिए, only for CSC India, and once you go Tarun there, आपको मेरे से बिल्कुल पागल लोग मिलेंगे, बिल्कुल पागल। मुझसे फास्ट बोलेंगे वो, उनको कैच करना है। Why you wanna go with the oops? सोचना ही नहीं तुम्हें, sir. There are several reasons and cause I wanna go for oops. I know coding better. I'm full of logic. Really? Yes, I have. I have gone with the C and data structure. I know what is logic and how to build a logic. Logic never by Java and .NET. Logic only by for loop and if conditions. But how I can summarize my code? How I can summarize my code? How I can make effective code? How I can achieve code optimization and code improvement technique? Size of the code is most important rather than writing a code. Size of a code is most important than rather than writing a code. This objective of learning oops, I can achieve classification. वर्ड लिखते चलो, मैं सारा बोलूंगा UML के टर्म्स, UML words. The subjective of learning oops, according to myself, I am telling you, there are various causes. Man can have experience. You can have a good experience with a merit. I have a good experience with a merit. Might be you have got accident with a merit. You will have the worst experience with a merit. हर का अलग अलग एक्सपीरियंस है सर. What I am sharing my experience. Might be maybe you have different perception about oops. But what is my perception I am telling you? I know how to write a Fibonacci series and factorial and B plus trees and threaded binary trees. CSC के बेटे चेयर पे बैठते ही तुमसे सॉर्टिंग पूछेगा, चाहे 10 प्लस पे जाओ चाहे 1 प्लस पे जाओ. 7, 9, 3, 2, 1. Write a shell short for that. And beta, when you write a code, Aurora, when you write a code, he will say, it's not optimized code, baby. Rashmi, Aurora,
He will ask you, it's not optimized code. Okay, tell me, how many ways you can write the same program for cell shock? That's a calculus. That's applied mechanics called physics. That's called general physics. I can solve one question by different ways. जो मेरी आवाज की भी कॉन्फिडेंस है, आप यही कॉन्फिडेंस बरकरार रखोगे, आपके हार्ट की बीट, आपकी आई कांटेक्ट, आपका फिंगर देखेगा बंदा वो. How much you are confident by face and by your body language. Let's go CSC. Well, I can write the code multiple ways. So you have to have a code optimization technique. So how you can achieve code optimization technique by oops? Sir, there are 3 variables in my program. So no order. There are 3 in my program. One is called int for factorial. Okay. This is a character array for palindrome, Madam, Malayalam. And there is a third string comparison. Again, there is a character array. I got 3 variables. 2 are of same type. One of different type. 2 of character array, 1 of integer for factorial. I write a program. These 3 variables goes in RAM. Memory called stack. Because stack is a part of RAM. Heap is a part of RAM. These are memory segment in a RAM. There are several memory segment in RAM. So now, Somil, first question. What are memory segment in RAM? लिख लो question. पढ़ा नहीं रहा हूँ बेटे. मैं पढ़ा नहीं सकता हूँ किसी को. Sorry. There are several segment, memory segment in RAM. The code area, memory block area, stack area, and heap area. Every program in Java and .NET moves or achieve 4 segment area. The code area, the memory area, and the stack area, and the heap area. Whenever we compile the program, any program in .NET, if we compile any program in .NET, first beta compiler has to have a code area to compile your program. If you don't give code memory area, how they can compile the program? Take an example, maybe I have a system. Oh my God, it has got major barrels. I'm opening a command prompt of DOS, writing CSC space a.cs or Java C a.java. It takes much and more time to compile the program. It means virus has effectively what? Code area. And only one site is there. They are still beautiful 4 areas. It's called csharpcorner.com. What is code area? What is memory block area? And your stack area and the heap area. Now, come back to point. I have 3 variables, 2 of similar type, 1 of dissimilar type. These 3 variables goes in a RAM, any memory area. But frankly speaking, this time, these 3 variables goes into a stack area. It is a memory, stack is a memory. But a problem is there, Tarun. Whenever you declare the variable in your program,
These three variables never be in continuous memory area. It might be bloody in different memory area. Oh shit, I have got 3 tickets. One represent 105, second represent 107, and third represent 207. So I feel comfortable at least with the 105, 103, because there is only one gap in between. But there is a one area, it's called 207, it's very far from me, am I right? So maybe if you will usually go for writing a printf first area, printf second area, printf third area. So third variable will take much and more time to display the output because there is a fragmentation of area. Sorry, there is a defragmentation of area. Because all three variables never be in a continuous memory location. So they have got different memory address. तो बेटे ऑपरेटिंग सिस्टम की टच, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का प्रिंसिपल, यूएमएल की नॉलेज, यूएमएल का जबरदस्त नॉलेज, ओआईडी की नॉलेज, ओआईडी तो छोड़ नहीं सकते हो आप, यूएमएल आगे तो ओआईडी आ ही जाएगा, और उप्स की नॉलेज, ये बहुत अच्छा मांगते हैं। उसके लेवल से प्रिपरेशन करोगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, आज समझ में आया कि मैं क्लास नॉट अभी क्लास की तो बात ही नहीं उठ रही है। आई हैव गॉट 3 मेमोरी वेरिएबल। तो बेटा 3 मेमोरी 3 वेरिएबल, नॉट इन कंटिन्यूअस मेमोरी, इन स्कैटर्ड मेमोरी। अंदर थोड़ा गुस्से में है, क्या हो गया? इनका बड़ा बेटा वहां खड़ा है, छोटा बेटा वहां खड़ा है, आंटी वहां खड़ी है, ये परेशान है, मतलब ट्रेन आने वाली है। क्या कर रहे हो गधो? सब एक जगह इकट्ठे हो जाओ प्लीज। ओ बेबी, आई वांट हीप एरिया, आई वांट हीप एरिया। Why not? You can have all the collective variables. What all the collective variable in a single location, baby. Object is a collection of variables. So now beta, there is a one single memory address. जाके पढ़ना लेटेस्ट C++ के बुक से। ऑब्जेक्ट आर्किटेक्चर क्या है भाई, यशवंत कानेटकर क्या पढ़ाता है बंदा। एक सिंगल एड्रेस के ऊपर 3 वेरिएबल बंद है बेटा। यहां देखना, 4 कॉलम एक टेबल के अंदर बंद है, और बाय गॉड मजा आ गया, और टेबल सपोर्ट कर रहा है क्लस्टर्ड इंडेक्स। I can have better, faster, retrieval concepts. So now, what is an object? Object, it is having a single memory address, and all the variables are resident in single memory address. Otherwise, if you don't apply class and object, then you got 3 variables in the different location. Why object oriented beta? So all the one object represent to one class. So now there is a class called ABS. Now think here, abstraction principle. Think for abstraction. Why it is called abstraction? Because it's a logical entity. The class is called logical entity. What is class? It's a logical entity. Why? Sir, कहे why? अब तक मेमोरी एड्रेस नहीं बनी है, और मेमोरी एड्रेस तब बनेगी जब बोलो क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट। अच्छा के तो क्या बनी है सर? मेमोरी ब्लॉक बनी है, एक ऐसा एरिया बना है, बस एक ऐसा। ये एरिया कौन है? ये स्टैक है। समझते क्यों नहीं हो? हीप नहीं बनी है सर, गधे, हीप ना बनी है। ये क्या बनाया तुमने? ये स्टैक बनाया है। कहाँ पे सर? रैम में। क्या है इसके अंदर?
सर आपने लिखा ना ABS, आपने ABS लिखा ना, तो क्या होगा, जब रन करोगे तो स्टैक में ABS दिखा जाएगा। आपने लिखा संदीप करण, अब पन्ने को चेंज करा, जहाँ ने लगा रखा था कार्बन, वहां दिखता है संदीप करण। एक संदीप करण यहाँ, एक संदीप करण वहां। तो मेरे कोड एरिया में क्या लिखा हुआ, बोलो ABS। अब मेरे स्टैक एरिया में क्या लिखा गया, बोलो ABS। या ABS आ गया, मतलब क्लास मेमोरी में लोड हो गई। नाउ क्लास इज लोडेड इनटू मेमोरी। So once already class is loaded into memory, they can call either, but there is a memory block, keep in mind, there is a memory block. इस वक्त बेटे आप ABS के साइज निकालोगे तो साइज मिलेगी। इधर करें, इधर आओ, इधर जरूर मार दो जान। मैं इसकी बाल निकालू, एक बाल, इसकी भी साइज है। धीरे बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लोकस। Every class has size, and beta every object has size. 1 byte is for class size. 1 byte. एक क्लास की साइज 1 बाइट होती है। सोचो, आप लिखते हो इंट, आप लिखते हो फ्लोट। सारे लोग सोचते हैं ऑब्जेक्ट की साइज, अरे बंदर क्लास की साइज ना होगी क्या? अगर सारे क्लास की साइज ना होगी तो क्लास के नाम से फंक्शन कैसे कॉल हो जाएगा? कहीं ना कहीं क्लास मेमोरी में लोड तो है। यस यार, क्लास के नाम से फंक्शन कॉल हो रहा है, कहीं ना कहीं क्लास एग्जिस्ट है। कहाँ है? स्टैक में। स्टैक क्या है? एक मेमोरी है। पापा को बोलो वहां आएंगे, और वहां जब आ जाएंगे मैं उसे पैसा मांगने आ जाऊंगा। सब मांगोगे बाद में को बुला तो लो यहाँ पे। तो बेटे अंकल जी, ये ABS जो है एक क्लास है जो स्टैक। इंट फ्लोट डबल, ये 3 डेटा टाइप है। सुमित बेटा, ये 4 बाइट डिपेंड ऑन द OS को 32 और 64 फ्लोट। ढक्कन, जब तुम्हारे फंडामेंटल डेटा टाइप के रेंज हो सकते हैं तो तुम्हारे ABS के रेंज ना होंगे। सुना, ये भी तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। छोटी छोटी बातों से CSC रिजेक्ट करती है। मैंने जॉब छोड़ने के बाद गुरु 50 तो नहीं कर सकता, 150 ट्रेनिंग हमने कम से कम CSC की थी, और सर सबका सर्टिफिकेट मेरे पास। छोटी छोटी बातें, अच्छा आदमी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखता है। एक नमूना, दूसरे का मोबाइल देखता है, उसका टी-शर्ट देखता है, उसके ऊपर का चीज देखता है। तो आज चला पता क्लास की भी क्या होती है, बोलो साइज होती है। यकीन नहीं आता। सब मुझे बतलाओ क्लास क्या है, क्लास से क्या बनाते हो? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। सब मान लो मेरी बात, वो कुछ भी साला है, एक डेटा टाइप है। अगर डेटा टाइप है तो उसका रेंज होना मस्ट है। समझ गए मेरी बात? अगर बेटे उसका मेमोरी नहीं होगा तो बदतमीज स्टैटिक फंक्शन कैसे कॉल होगा? अगर क्लास की मेमोरी नहीं होगी तो स्टैटिक फंक्शन कैसे कॉल होगी? और क्लास कहाँ है? स्टैक में है। क्लास का नाम कहाँ है? स्टैक में है। दिमाग लगाओ, पूरा खो जाओ। You say na class for making a user defined data type. If it is a user defined data type, really forget. If it is a data type, it has to have certain range. Am I right? When every fundamental has got some prerequisite range, why not baby about the user defined data type? It must be range. I said there is range for every item because we have gone with the chemistry. It's called molecules. Everything is having some weight. Okay, it might be negligible, but there is a weight. So now this ABS has some range, and you wanna go for calculating the range of this ABS.
go with the reflection, na. So by reflection, we can find the size of the user-defined data type. By reflection. And don't ask baby how, please. आज हम कोडिंग की ओर नहीं जाएंगे. But by reflection we can find baby the size of a class. I'm not asking beta size of an object. नहीं समझ में आता? अंकल जी मैं आपको लाइव एग्जांपल देता. अग्रवाल स्विच पे चलो हम दोनों आज. मिठाई तो बहुत बात की चीज है. एक डब्बे का भी वेट होगा. और डब्बा पे दुकान से निकालता है, स्टैक की मेमोरी से निकालता है और उसमें सामान रखकर तब तौलता है वो. और कुछ लोग तो ज्वेलरी वाले चलो एरिया में, चलो ज्वेलरी वाले एरिया में पहले वो उस ब्लॉक का एड्रेस मेमोरी लेता है, बाद में कंटेंट का मेमोरी लेता है. ऑब्जेक्ट की साइज क्या होगी सुन लो, सुन ले. ऑब्जेक्ट की साइज क्या होगी? तरुण क्या बोलते हो इसके ऊपर? व्हाट इज योर कमेंट? अगर मान लो वेरिएबल को भी कुछ भी ना हुए तो बेटा ये जो चुप हो गया ना हमें खराब कर देगा सीएससी. अच्छे लोगों को पेशेंस नहीं होता याद रखना इस बात को. जिसके पास नॉलेज है ना उसको पेशेंस नहीं है. यू डोंट वांट टू स्टॉप योर माउथ. उसको बोलो सर अगर क्लास में कोई वेरिएबल नहीं है उस केस में बेटा जो क्लास की साइज होगी वो ऑब्जेक्ट के साइज में काउंट होगी. नहीं सुने अंकल? अगर मान लो मेरे मिठाई के डब्बे में अगर कोई मिठाई नहीं है तो साइज क्या होगा? जो डब्बे का साइज होगा. अगर बेटे क्लास में मान लो कोई वेरिएबल नहीं है तो साइज क्या होगी ऑब्जेक्ट की? सर क्या बात कर दी. अगर क्लास में कोई वेरिएबल नहीं है तो ऑब्वियसली जो क्लास की साइज होगी वही क्या होगी बोलो? ऑब्जेक्ट की साइज होगी. फंक्शन हुआ तो हम चुप. और भी आएंगे बाद में उस पर, फंक्शन पे बाद में आएंगे. ठीक है. तो देयर इज अ साइज फॉर द क्लास. इफ देयर इज अ साइज फॉर द क्लास देन गौरव there is existence of a static function to be called. There is existence for a static function to be called and static constructor to be called, because static constructor and static function runs under the memory of what? Class. Because they are invoked by the what? Name of the class. बिल्कुल मन में संकोच मत लाओ, साले क्लास का भी साइज होगा. कि मत बोलो क्लास से एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनता है और पहली लाइन में लिखी होती है सी प्लस के पहले लाइन पे एवरी फंडामेंटल हैज सम सर्टेन रेंज. इट डिपेंड्स ऑन 32 और 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम. नहीं गेस करो क्लास की साइज क्या होगी. अगर आपको बेटे नहीं पता है आप उसको सिंपल बोलना, सर द साइज ऑफ द क्लास विल बी देयर बिकॉज आई एम इन्वोकिंग द स्टैटिक फंक्शन और द static constructor by the class name. If class is not loaded into memory, how I can call a static constructor and static function? हाँ ये साले बोल दो कि static function को कॉल करने के लिए या static constructor को कॉल करने के लिए गधे एक क्लास के नाम की आवश्यकता नहीं है, मैं मान जाऊंगा आपकी बात. और ये भी प्रूव करके जाओ मेरे सामने तुम कि फंडामेंटल की अगर रेंज है तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप रेंज क्यों नहीं? वो भी एक डेटा टाइप ही है बट अंतर वो एक्सटेंडिबिलिटी सपोर्ट करता है. वो कस्टमाइज हो सकता है, बदतमीज वो कस्टमाइज नहीं हो सकता, वो ऑल्टर नहीं हो सकता है. इतना बोल के जाओ. और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरह बात छोड़ करेंगे सामने तो एक पॉइंट की भी बोलो क्या होती है? साइज होती है. चलो ठीक है. मैंने यहां पे 3 वेरिएबल ले ली तो क्या देखा? अगर ये 3 वेरिएबल अगर बेटा बिना क्लास ऑब्जेक्ट का होता तो तीनों वेरिएबल डिफरेंट मेमोरी लोकेशन में होता. इसलिए बोलता है इस बंदे ने बनाई सी और इस बंदे ने बनाई C++, लेकिन उसके बुक के ऊपर C++ बनाई बिना स्टॉर्सअप ने. उसने बोला इफ यू राइट 1000 लाइन ऑफ कोड्स, 1000 लाइन ऑफ कोड, फाइनली ब्लेडी यू आर द ब्लेडी मैन, योर प्रोग्राम गोज आउट ऑफ योर कंट्रोल. It
It means in C, no classification is there, no beta categorization is there, no codizability is there, no generalization is there. Because we write a program in procedural approach, Suchi, we write in procedural approach. As we read in Lala ke dukaan pe, the whole items on a single page, panna type, am I right? वो गला पढ़ता है ले, और साला क्या लिखा, जिंदगी भर तो नहीं पढ़ पाओगे। पन्ना दे देगा, उसको पढ़ने के लिए तुमको दोबारा फिर से पढ़ना पड़ेगा। हाँ ठीक है, 572 रुपये ले लो, ये तो 572, मैं इसको जोड़ूंगा नहीं। तो बेटे, what is procedural language? In procedural language, all the memory variables are kept in different memory. जितने आपके variables होते हैं, लो ना, लो देखो, void main लिखा, index y, और देख x y जो बेटा दो वेरिएबल हैं, x और y वेरिएबल, अगर मेन में लिखा हुआ है, ये दोनों वेरिएबल माना किसी मेमोरी ब्लॉक में जाएंगे और दोनों का बेटे एड्रेस क्या होगा, बोलो अलग अलग होगा। हम क्यों बोलते हैं सिस्टम को डिफ्रैगमेंट करो, क्यों बोलते हैं, किससे बोलते हैं? जो यूजेबल एरिया है उसको अलग करो, जो नॉन यूजेबल एरिया है क्या करो, उसको बोलो अलग करो। इससे क्या होगा, इंडेक्सिंग सपोर्ट होगा और मूवमेंट क्या होगा, बोलो फास्ट होगा। अंकल सिस्टम फास्ट नहीं हुआ, आपके काम करने के तरीके से सिस्टम बोलो क्या हो गया, फास्ट हो गया। एंड सर, जब तक इस क्लास को मेमोरी मिलती रहेगी, वो कौन देगा? तो ऑब्वियसली सिलार देगा। और कौन देगा? ऑब्वियसली मेमोरी मैनेजमेंट सिलार करता। जैसा फंक्शन कॉल हो बदतमीज, चाहे ऑब्जेक्ट मेमोरी ले चाहे क्लास मेमोरी ले, सारा का मैनेजमेंट कौन करेगा, बोलो सिलार। मैंने पहले बोल दिया है कि मेरी क्लास का वर्चुअल ओएस कौन है, सिलार है बालक। मेरी क्लास का वर्चुअल ओएस भी सिलार है और मेरे ऑब्जेक्ट का वर्चुअल ओएस भी बोलो कौन है, सिलार है। नहीं समझ में? जिसको जिसको नहीं आया, मैंने आपको सबका नाम बोल दिया। ब्रेक होगा, अब आपस में बातें कर लो यार। चलो हाँ बोलो। हाँ बेटा, हमने लिया है मेरा इंटरव्यू और उसने बोल दिया लीव फॉरवर्ड नहीं हुआ। नहीं, पहला राउंड जो दूसरा राउंड था उसमें इसने बोल दिया, बल्कि मैंने आंसर तो दिए थे। अभिनव श्रीवास्तव है। ये कौन है? एक मिनट, अभिनव श्रीवास्तव कौन है? रुक जा। अभिनव श्रीवास्तव एसएल में उसने क्या बोला? यू कैन गो फॉर डे। चलिए तो बाद में कॉल करता हूँ, चिंता ना कर, ठीक है? मैं देखता हूँ। ठीक है बेटे, तो व्हाट इज क्लास? फाइनली देयर आर सेवरल बेनिफिट्स आई कैन गो फॉर लर्निंग ओप्स। फर्स्ट, आई वांट टू हैव अ, अब सुनना इसका समाइल आंसर। फर्स्ट, आई वांट टू हैव अ सिंगल मेमोरी एड्रेस। In that memory address, I can have collection of variables. It means Tarun, if I create one more object, सुनना यहाँ देखना, if I create one more object, it means that object and the previous object you won't believe in same memory location and in continuous sector, in a continuous sector. So my first memory address is 105. Keep in mind, it is Cellar responsibility to guarantee you it will give definitely 106 memory address, or otherwise it will search the empty memory address for your new object, but they will have a tendency. तो 2 टिकट है, हम दोनों भाई हैं, तो ऐसा करना प्लीज, 7 टिकट दे। ऐसा बहुत मैं ट्राई करूंगा, अदरवाइज मैं कुछ नहीं कर सकता। How Cellar works? How Cellar provide memory for your programs? It means Cellar apply inside the picture data structure. Am I right? They apply certain algos of data structure. They search sectors in a RAM
not in hard disk, but sectors in the object never be hard disk, boss, come on. It never be hard disk, because if object is in hard disk, this is called serializable object. And suna hai beta, every class is a non-serializable. अरे जी कैपिटल, टेंशन मत लो, जनटैक्ट में हो ना, टेंशन मत लो, मेरी बातें तुमको धीरे धीरे आएगी, बस समझने का ट्राई करो. अब बोल दिया वर्ड serializable तो टेंशन मत लो. अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर हार्ड डिस्क में सेव हो गई, हम दोबारा उसको यूज कर लें, वो क्या बोलो, serializable. अगर ऑब्जेक्ट रैम में गई, अगर मैंने एप्लीकेशन को बंद कर दिया तो ऑब्जेक्ट वहां पे नहीं. Is called permanent and called temporary. Every object is non-serializable, and due to every class is a what? Non-serializable. That's why object is in memory of RAM, not in what? Memory of hard disk. कि हार्ड डिस्क में फाइल होती है, हार्ड डिस्क में ऑब्जेक्ट नहीं होते, हार्ड डिस्क में क्लास नहीं पाए जाते हैं. और गधे सब कुछ हार्ड डिस्क में पाए जाते, फिर रैम की आवश्यकता क्यों पड़ती मुझे? तो Haussler provides your memory for your programs. So implicitly they must call data structure to search the next memory location in a RAM. If it is free, they provide the what of memory address for the next object. इसका मतलब बेटे, अब मेरे पास पहला ऑब्जेक्ट हो गया A1. हाँ, तुम उसको A1 समझो, कोई दिक्कत नहीं है. वो क्या समझेगा? X100F1 is the memory address. Getting? Now there is one more object. This is called A2. This is one more object called A2, which has X100F2 as the address. There is a tendency, this is psychology, it will give you next memory address. Otherwise, it will give you what? Randomly what memory address. Then might be CLR. How CLR works. But these two objects in heap. These two objects in a heap. And heap is a what? Memory segment in a what? It's a RAM. पूरा बना दो RAM. ये सब क्या हो रहा है? What happens when you run the program? Stack company run time पे, heap company. ऐसा बताओ, पहले stack बनता है, पहले heap बनता है. अगर हमने सारा गलती से heap बोल दिया ना गुरु, तो फिर you can live for a day, baby. Okay, I will leave you the whole life. Don't worry. So नहीं है. You can live for a day. बेटा रन टाइम पे जैसे आप आते हो यहाँ पे इस पॉइंट पे, अगर आपको देखना है ना, तो मैं आपको बार बार बोलता हूँ, एक ही बंदे ने करा है, मेरा रोमिल जैन, लाजवाब बंदा अब तक का सेंटर में. मेमोरी ट्रेसिंग की सॉफ्टवेयर आती है मार्केट में, आप गूगल से डाउनलोड करते हो, समझ गए? वो सॉफ्टवेयर बेटे क्या करेगा, आपके डॉटेड में एम्बेड हो जाएगा. डॉटेड में एम्बेड, वहां से तू पढ़ेगा मेमोरी, और तू वहां से जो पढ़ेगा गार्बेज कलेक्शन, वो तुमको कोई नहीं पढ़ा पाएगा. क्यों? सर मैंने आपको आउट होते हुए देखा है. कैसे? सर आपके मैंने हाईलाइट देखी थी आज, अब रियली आउट थे. तो मेमोरी ट्रेसिंग की सॉफ्टवेयर आती है, चलो डाउनलोड कर, वो डॉटेड में एम्बेड हो जाएगा. जहां तो बेटा प्रोग्राम रन करेगा, वो बैकग्राउंड में तुमको पूरा ग्राफ दिखाएगा, और तू जो वहां से सीखेगा वो तुमको सिखा नहीं पाएगा, वो हम भी सिखा नहीं पाएंगे. हम तुमको महसूस करा पाएंगे, हम तुमको दिखा नहीं पाएंगे. आई कैन मेक अ डायग्राम ऑन द पेपर, बट आई कैन नॉट शो दैट दिस. तो 2004-05 हमने बड़े इसके ऊपर खाएं करें. The Haussler works. Haussler provides a memory for your programs. And how objects are being managed by CLR? तो बेटे कोई बड़ी बात नहीं है. ये पूछ रहा है मेरे से कि अगर तुम मानो 2-3 भाई हो, पापा ने तुमको कैसे मैनेज किया? अरे बिल्कुल थ्रेडिंग करी,
सिंक्रोनाइज किया, डेडलॉक से बचाया, कन्क्वेंसी प्रॉब्लम खत्म करी। एक ही पैसा का इनकम होता था और हर भाई को देना है। एक ही सोर्स ऑफ इनकम है और 3-4 लोग लेने वाले हैं। प्रॉपर मेमोरी एड्रेसिंग भी है। तो आप कैसे सोचते हो आई डोंट नो। हम ऐसे सोचते हैं कि दिस सिंगल पैरेंट कॉल्ड CLR, देयर आर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बाय द CLR एंड दे आर मैनेजिंग ऑल द ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, चलो फाइनली जब मैंने सुमित 2004 में इंस्टॉल करी मेमोरी एड्रेस, मेमोरी प्रोफाइलिंग सॉफ्टवेयर और मेमोरी ट्रेसिंग सॉफ्टवेयर, फ्रेमवर्क 2.0 की बात है, सॉरी फ्रेमवर्क 1.0 की बात, 1.1 की बात है। तो वहाँ पे हमने वहाँ से सीखा था कि CLR मेमोरी प्रोवाइड कैसे कर रहा है। बेटे येलो रंग की एक मार्कर बनी थी, येलो कलर देखा होगा, डीबगर। डीबगर के पीछे भी होता है। तो बेटे डीबगर में दिक्कत क्या है? डीबगर से आप स्टैक तक जा सकते हो। बोलो कहाँ तक? आप बेटे हीप में नहीं जा सकते। क्यों? स्टैक एक ग्लोबल एरिया है, समझ गया? स्टैक एक ग्लोबल एरिया है और हीप क्या है? बोलो इंटरनल एरिया है। क्यों? एक स्टैक में मल्टीपल क्लास लोड होते हैं। क्लास एम्प्लॉई, क्लास AVS, क्लास AKG, क्लास JSS। तो 4 क्लास चल रहे हैं बेटे। तो एक स्टैक, 2 स्टैक नहीं होते हैं अलग अलग, स्टैक एक होते हैं। ये सिंगल स्टैक और ये सिंगल हीप, एंड वन हीप कैन हैव मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। इसका मतलब ये कैसे समझोगे? सुन बेटे, ये कैसे समझेगा स्टैक? ये जो हीप में 2 ऑब्जेक्ट चल रहे हैं, ये जो हीप में 2 ऑब्जेक्ट चल रहे हैं, ये मेरे क्लास के हैं। अंकल ही कैसे समझेंगे कि नहीं अंकल नहीं, अंकल के 2 बच्चे हैं, ये दोनों बच्चे घूम रहे हैं लाजपत नगर में। वो बाहर का बंदा कैसे समझेगा ये दोनों बच्चे अंकल के हैं? अरे बेटा स्टैक में हीप का एड्रेस होता है। अगर स्टैक में हीप का एड्रेस नहीं होगा तो ये जो बच्चे घूम रहे हैं ये किसके बच्चे हैं भाई? तो इस स्टैक में इस हीप का बोल क्या है? स्टैक में हीप का एड्रेस है। बंदर ये मत कर देना हीप में स्टैक का एड्रेस। इसी देखिएगा, सुनाओ। जब वैसे तेरी शादी हो जाएगी ना तो तेरा बच्चा होगा, देखना उस बच्चे के देखना पट्टे में क्या होता है। देखा है कभी? बच्चे के पट्टे में उसके बाप का नाम लिखा होता है। नहीं समझ में आया? वो मिलते हैं, क्या होते हैं भूल भी गए यार। मेरा बेटा चला जाता है सुबह तो क्या होता है? आई कार्ड। मैं तो सारे टर्म भूल गया हूँ। जब बच्चा पैदा होता है उसे लगा चेंज ना हो जाए। बच्चा जो पहनता है ना आई कार्ड, उसमें उसके बाप का नाम संदीप करण लिखा होता है। और संदीप करण क्या है? एक स्टैक है अपने बच्चों के लिए, राइट? तो पहले बता कौन लोड हुआ मेमोरी में? पहले मेरे बच्चे लोड हो गए क्या? इसलिए ऐसे समझेंगे ये सिर्फ मन बुद्धि के हैं नहीं, इनकी बुद्धि मुझसे ज्यादा तेज है और कामों में, पढ़ाई को छोड़कर। ठीक है, तो पहले बेटा स्टैक लोड होगा, बाद में क्या बोलूं मेमोरी लोड होगा। हमने स्टैक को लोड होते हुए देखा बेटे उसी मेमोरी ट्रेसिंग सॉफ्टवेयर से। किसी भी कंपनी का डाउनलोड कर लेना, मेमोरी ट्रेसिंग फॉर .NET, मेमोरी ट्रेसिंग फॉर .NET बाय CLR। बेटे इस CLR का इंटरनल स्ट्रक्चर इस वर्ल्ड का कोई बंदा नहीं बना सकता एक्सेप्ट द मैन हु हैज मेड द .NET। इसके स्ट्रक्चर को समझने के लिए
बहुत सारे बेटे थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर्स हैं, और यकीन नहीं मानोगे तरुण, लोग सालों सालों साल लगे हुए हैं इसके स्ट्रक्चर को समझने के लिए। बट आई डिडंट फाइंड एनी मैन हु कैन हैव द कंप्लीट नॉलेज ऑफ सिलाब स्ट्रक्चर। क्यों बेटा? अपने आप में वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम, हम कितना भी ट्राई कर लेंगे, मैं तुम्हारे ब्रेन का हर पार्ट नहीं जान सकता। ऐसी कोई डिवाइस वर्ल्ड में नहीं बनी। ऐसा होता तो और उसी के केस में इतने साल नहीं लग गए होते। एंड एवरीवन नोज हु इज अ कल्प्रिट। किसी के घर में इतनी बड़ी हीनियस क्राइम हो जाए और बाप माँ को पता नहीं चले, डोंट मेक अ फुल बेबी। और कोई 400 गज का फ्लैट नहीं है, सिंपल जलवायु बिहार में 3 बेडरूम का फ्लैट है। ऊपर छत का ताला टूट जाए, सब कुछ टूट जाए, यहां से बॉडी का मूवमेंट भी हो जाए, बॉडी यहां से यहां भी आ जाए, एंड फादर नेवर नोज एंड द वाइफ नेवर नोज। डोंट मेक अ फूल यार, कम ऑन। तो ऑब्वियसली पहले कौन उड़ा था मेमोरी में? स्टैक लोड हो। बट बेटे स्टैक के ऊपर सिलाउट का कंट्रोल नहीं याद रखना। स्टैक के ऊपर सिलाउट का कंट्रोल नहीं है, इस हीप के ऊपर सिलाउट का कंट्रोल। इस हीप के ऊपर सिलाउट का कंट्रोल है और स्टैक के ऊपर सिलाउट का कंट्रोल नहीं है। ठीक है? तो ये जो तुम्हारी क्लास मेमोरी में लोड हुई है, ये क्लास अगर मेमोरी में लोड हुई है, इसलिए आप पूरा क्या बन रहे हैं बेटे? इतने ऑब्जेक्ट्स बन रहे हैं। तो हमने पढ़ रखा है डेटा स्ट्रक्चर, खून में है मेरे डेटा स्ट्रक्चर बालक। तो जब तक रूट नोड नहीं बनेगा, चाइल्ड नोड नहीं बनेगा अंदर। और ये मत कहो कि तुम्हारी जो क्लास है बालक, याद रखना, तुम्हारी क्लास बाइनरी ट्री को सपोर्ट नहीं करती, तुम्हारी क्लास ट्री को सपोर्ट करती है। तो एक क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। डायनामो की बुक से अगर डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा होता तो आपको मेरी बात बड़ी अच्छी समझ में आती। 50 साल बुक को पढ़ा है मैंने, 50 बार। और एक बार की बात है 2006 में मुझे अपने साले के साथ बुक पढ़ने का मौका मिला। तो मेरा साला आईटी का पास आउट है, अभी वो गया है कहाँ पे, IBS से MBA करने, और उसका 30 लाख बताया था। अभी 30 लाख उसका फीस एक साल, 9 में 1 साल का, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस। यस, 1 साल के लिए गया, 30 लाख रुपए देते ना। ही इज इन सेकेंड। एक रात बेटे मौका मिला बच्चे के साथ पढ़ने का। जब मैं खत्म होता था तो वो शुरू होता था। उस दिन तक IT का ब्रेन क्या होता है। और एक रात में हमें याद है, इतनी मोटी बुक की डेटा स्ट्रक्चर, हम दोनों बैठ के आधा खत्म कर दिया। जो हमें खत्म करने में 6 महीना लगा, उस महान के साथ बैठ के, जो मेरे से काफी छोटा है, आधा हो गया। मैंने जॉब रिजाइन कर, अभी गया 1 साल का MBA करने। जो 30 लाख का MBA करेगा 1 साल का, सोचो उसका पैकेज क्या है। क्या बोलना चाह रहे हो? सब बोल तो दिया। जब तक स्टैक में क्लास का नाम चलेगा, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बन जाएंगे। कितना ऑब्जेक्ट बन जाएगा? अरे सर क्या बात कर रहे हो, कितना ऑब्जेक्ट बन जाएगा? So there is a heap area, there is a heap area। कुछ है लिमिट? सर बिल्कुल लिमिट है। आप हीप एरिया से हीप एरिया को क्रॉस करोगे तो फिर ऑब्जेक्ट बनना बंद हो जाएगा। कुछ गेस करो तो बेटे यहां फंस सकते हो। उसके मुझे 1-2 क्लास का मौका दो। कितना ऑब्जेक्ट्स, कुछ तो होगा। तो बेटे हीप की एक लिमिट भी होती है। उस रैम की बेटे साइज पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा। और एक हीप आपका एलोकेट हो जाता है एक सर्टेन अमाउंट के साथ। जैसे मैंने पंकज द्विवेदी के मुंह से सुना था, एक डेटाबेस में 32,767 टेबल हो सकते। 32767 टेबल एक डेटाबेस में हो सकते हैं।
ये मत कहो बेटे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, तो हम डेटाबेस का साइज बढ़ा दें तो और ज़्यादा टेबल हो सकते हैं, बट एक डेटाबेस की साइज इतनी ज़्यादा है, इतने टेबल का करना क्या है हमें? तो वन डेटाबेस कैन हैव 3 to 7 6 7 tables, but we can increase the disk size. What disk size? वैसे ही आप हीप का बेटे साइज बढ़ा सकते हो। तो इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा कोर प्रोग्रामिंग इन सी, एपीआई कॉल्स इन सी। जावा और डॉट की इतनी औकात नहीं है कि आप इनके प्रोग्राम से आप हीप के साइज को बढ़ा दें। हाँ, इंटरॉप करके एपीआई कॉल्स करके अनमैनेज को मैनेज में कन्वर्ट करके कुछ करके आप साइज बढ़ा सकते हो, बट आप डिफॉल्ट साइज बढ़ा नहीं सकते हो। ठीक है, चलो। एंड ओवरऑल इट डिपेंड्स ऑन द रैप। चलो पहले अब आ जाओ, अब इस क्लास में 4 प्रकार के 4 चीज लो सबसे पहले सीखने के लिए। एक का नाम है स्टैटिक कंस्ट्रक्टर, एक का नाम है स्टैटिक फंक्शन, और एक का नाम दो कंस्ट्रक्टर, एक का नाम दो मेमोरी, एक का नाम दो फंक्शन। इसको ऐसे डिवाइड करो। Now the class can have several things, but class can have a static constructor, class can have a static function, class can have a constructor, or class can have the what you are member functions. Starting to Aurora represent to class, and last to one represent to an object. Because if object exists in a memory, you can trigger something. Oh my God! If object exists in a memory, you can trigger something. Why not if class exists in a memory, you can trigger something? तो उसे पूछता है what is static constructor? तुम आंसर देने क्यों बैठ जाते हैं यार तोते टाइप से? जल्दीबाजी क्या तुम्हें? If someone asks what is static constructor, sir, in a heap, object is running. In a stack, class is running. The static constructor and the static function belong to class memory, and class has memory, keep in mind. Like object can have memory. As soon as a class loads into memory, as soon as when a class loads into memory, I can trigger something. Why not? Similarly, as soon as when object loads into RAM, in a heap, when object is in heap, it can trigger something. So at what time class is loaded into memory? How do I know? At what time object is made? How do I know? मेरी वाइफ कितने बजे गई थी हमें याद है 2011 27 मार्च 26 मार्च शी गॉट अ पेन मॉर्निंग 4 बजे उसको मैं लेके गया हॉस्पिटल। अनफॉर्चुनेटली उस दिन मेरे घर में भैया भी नहीं था, भाभी भी नहीं थी। आई वॉज टोटली पैनिक्ड। आई कॉल टू मनीष कुमार सिंह। मैं अपने स्टूडेंट को फोन करा, मनु सर को फोन करा कि मेरा पहला बेटा that time I was in here and she was in Roorkee. My father-in-law has given all the formalities for that. I don't have any experience for that. What I do? I was totally stuck. मैं करूँ क्या इस वक्त? और 3:50 हो रहे थे, उस समय को टाइम याद है। मैं कार निकाला, क्या करूँ? To my knock in the morning because it's a Delhi. इतना कोई किसी से क्लोज नहीं अपार्टमेंट के अंदर। But fortunately, within 25 minutes, Manoj reached to my place. My Manoj Khattar, my student reached to my place, and from that area,
नॉट डेली। मनीष स्टे इन बसुल लाइन के लिए मेरे घर के पीछे रहता है, वो 2 मिनट में आ गया। उसकी वाइफ भी आ गई, शी हैज एक्सपीरियंस। सर आप चलो अपने, आप गाड़ी स्टार्ट करो एंड रेस्ट मेरे पे छोड़ दो। वो कितने बजे लोड हुई, हमारा राइट? तो क्लास उसका एंट्री टाइम मेंटेन हुआ, मुझे याद है 62 वाला, इतनी सुबह मैं उसको लेकर गया। अब सारा काम मनोज देख रहा है, उसकी वाइफ, सब मेरे को मतलब नहीं, आई एम समवेयर राइट नाउ। तो देयर इज एंट्री टाइम। तो क्लास अगर मेमोरी में लोड हुई, यार हम तो लॉग मेंटेन कर सकते हैं बाय स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। ओ माय गॉड, हमें नहीं पता तुम स्टैटिक कंस्ट्रक्टर से क्या करते हो। हमें तो ये पता है कि मेरे फोर्टिस में मेरे वाइफ का टाइम मेंशन्ड, इज कॉल्ड एडमिट टाइम। व्हाट? एडमिट टाइम। अगर डिलीवरी नहीं भी है, इट्स एडमिट टाइम बेबी, नॉट येट द ऑब्जेक्ट इज मेड। am I right? वे नमूना आया नहीं है। The class is loaded into memory. So what does it mean? If class is loaded into memory, I would like to know what is the log time for the class. अगर बेटे ऑब्जेक्ट का लॉग मेंटेन हो सकता है, तो गधे क्लास का लॉग मेंटेन ना हो सकता। बदतमीज, मैं साला देख रहा हूँ सिस्टम साला मॉर्निंग से ऑन है। बदतमीज, मैं इसको देख रहा हूँ साला सिस्टम मॉर्निंग से ऑन है। क्यों? तो तुम कितना हीट हो गया, इसे बंद करो यार। अब जो बंद कर दोगे बेटा, तो इसका स्टैंड नहीं बनेगा, हमारा राइट? मतलब कोई इसको यूज नहीं कर पाएगा। तो व्हाट इज द यूज स्टैटिक कंस्ट्रक्टर? बाय स्टैटिक कंस्ट्रक्टर आई कैन हैव अ log maintained for the what? Class. I do, sir, I do. Because I know what is web development. Yeah, I know there's different persona. I know what is web maintenance. I know what is ASP.NET. Application on start and session on start. With the user request, session on start. When you run the application, when you run the website, application on start. And Guruji, application on start will be loaded only once. So static constructor will be only loaded once. स्टैटिक क्लास जो मेमोरी में लोड हुआ, सर फिर मार खाएगा। स्टैटिक क्लास क्या करे? हाँ बोला मोटे सर, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर बोलो। जैसे ही क्लास मेमोरी में लोड हुआ, उसके स्टैक के ट्रेस में, बोलो कौन? स्टैक के ट्रेस में टीएसपी मेंटेन हो गया बालक। अब प्लस करके देख सकते हो वहां पे स्टैटिक कंस्ट्रक्टर फायर हो गया। और जब क्लास मेमोरी में लोड हो गई, इसलिए बोलते हैं बेटे स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर में डिफरेंस क्या है? हम नहीं जानते तुम क्या बोलते हो, हम तो ये बोल के आते हैं स्टैटिक कंस्ट्रक्टर से हम किसी भी एप्लीकेशन का बैकग्राउंड मेंटेन कर सकते हैं। हमें नहीं पता तुम क्या बोलते हो। भाई तुम डेफिनेशन बोलते हो, हम उसका इम्प्लीमेंटेशन बोलते हैं। तुम उसके ऊपर काम कर रखा है बेटे, इसलिए गुरु इस हाथ से सबकी जॉब लग रही है। मैं सारे मास्टर होते थे, जॉब किसी की ना लगती। अंकल ये बच्चा बैठा है, नहीं लड़का पीछे देख लो, किसी ने मेरे को फ्रीज दिया था, गिफ्ट फ्रीज। आज बच्चे जो पानी पी रहे हैं इसी का दिया हुआ है। इसकी चलेगी जॉब, ले गया मेरे भट्टा में से, क्या लोगे? मैंने कहा फ्रीज दे दो। What is static constructor? By static constructor, I can achieve the background process, and by the constructor I can achieve the abstract logic, abstraction layer logic. जब यूजर क्लिक करेगा ना तो ये होगा। सर जी क्लिक तो छोड़ो, पहले एप्लीकेशन को तो रन करो यार, दिमाग खराब कर रखो 2 घंटे से बैठा कर।
नहीं है सर नहीं। जब वो आएगा वो गाना खोजेगा, मुझे पता है, उसके बाद क्या करेगा, वो वीडियो मीडिया प्लेयर में जाएगा, फिर क्या करेगा, फाइल में जाएगा, ओपन में जाएगा, क्लिक करेगा, गाना सुनेगा। अरे बदतमीज, पहले ये तो चेक कर साउंड कार्ड साला चल रहा है कि नहीं, साउंड ड्राइवर है भी कि नहीं, स्टॉर ढक्कन। तो हर एप्लीकेशन के अंकल 2 स्टेज होते हैं, बैकग्राउंड प्रोसेस एंड द यूजर प्रोसेस। अगर यूजर प्रोसेस पे हो तो फिल करते हो कंस्ट्रक्टर को और मेंबर फंक्शन, और अंदर हो तो किसको फिल करते हो, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर को, और किसको, स्टैटिक फंक्शन। चलो बनाते हैं एक एप्लीकेशन, क्या होगा उसमें, तो उस एप्लीकेशन से पहले हार्डवेयर चेक होगा। कितनी बार चेक करोगे, सब बंदर हो गया, हार्डवेयर एक ही बार चेक करें। और उस कोड को कहां पे लिखें, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर में। कौन सा नेमस्पेस लोगे, सर क्या है, सिस्टम डॉट रन टाइम डॉट इंटरप्ट सर्विसेज यूज करूंगा, डीएल इंपोर्ट क्लास यूज करूंगा, और ड्राइवर को लोड कर लूंगा। बस एक बार ड्राइवर को लोड करूंगा, वो बंदर हर बार क्लिक क्लिक करेगा। ड्राइवर को लोड कर लेंगे और इनिशियलाइज करेंगे कंस्ट्रक्टर। क्या बात है, ड्राइवर को लोड कर लेंगे, बोलो कहां पे, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर में, और इनिशियलाइज कहां पे करेंगे, बोलो कंस्ट्रक्टर में। और जो बंदा यूज करने आएगा तो अपना फंक्शन कॉल करेगा। नहीं ऐसा सबों को नहीं आ रहा, मुझे पता है ना। सोचो कहां फंस गए, कब क्लास खत्म होगी, कब भागूंगा, सालों पूछूंगा रुक जा जानवर, अभी सबको खड़ा करता हूं मैं यहीं पे भी। तो बेटे थोड़ी स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। अगर बेटे अगर आप मतलब थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के ऊपर काम कर रहे हो, मतलब मैंने ये सीखा था राजीव यादव से, एक एप्लीकेशन के 2 स्टेज होते हैं। तो बेटे एक बच्चे को ज़्यादा आता है ASP.NET का स्टेट मैनेजमेंट, और ज़्यादा आता है पेज लाइफ साइकिल, ज़्यादा आती है जावास्क्रिप्ट और जेस्क्रिप्ट और जेक्वेरी, ये स्टेट मैनेजमेंट हमें नहीं आता है। हमें ये आता है जब तुम एप्लीकेशन को रन करते हो तो क्या होता है। हमें ज़्यादा क्या आता है पता है, HTTP रन टाइम क्लास, HTTP एप्लीकेशन क्लास। और तुमको साले क्या आता है, पेज क्लास। कि पेज क्लास तेरे सामने क्या मुखा लेके बैठा है। तो पेज क्लास क्या है बोलो, एक क्लास से कंस्ट्रक्टर है, एक क्लास बोलो कौन है, फंक्शन। HTTP एप्लीकेशन क्लास, HTTP रन टाइम क्लास, बोलो कौन है, बैकग्राउंड। तो अगर बेटे किसी अच्छे बंदे के सामने जा रहे हो, खासकर इंटरव्यू देने ASP.वेब डेवलपमेंट का, एक 2 क्लास में हाथ साफ करोगे, HTTP रन टाइम पे, HTTP तो वो जान मार देगा, छोड़ेगा नहीं देगा, पानी पिला के रख देगा। HTTP रन टाइम नहीं है गुरु तो कुछ नहीं है, फिर साला एप्लीकेशन भी नहीं है। फिर अगर रन टाइम नहीं है तो एप्लीकेशन ही नहीं है। ठीक है, कैसा रहा अंकल, कैसा रहा बेटे, हमें पास ताकत नहीं है, टोटली एग्जॉस्ट है। अब छोड़ दें और पड़ेगा 10 सुबह 8 बजे फ्रेश माइंड के साथ यही से कंटिन्यू करो। बेटे प्लीज, अभी आपको नहीं पता, मैंने झंकार के इंटरव्यू का लफ्ज सुना है यार। आप अपनी डिजिग्नेटी, अपने बोलने का नॉलेज का लहजा बिल्कुल मत चेंज करो। हम कैसे बोलते हैं स्टैटिक कंस्ट्रक्टर, ये होता वो होता, हमें नहीं पता डेफिनेशन। हमने जो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर से करे वो मैंने एक्सप्लेन करा। साले बटन पे क्लिक तो बहुत बात की बात है, पहले एप्लीकेशन को तो बनाओ यार। हर एप्लीकेशन के 2 फेज हैं, एक यूजर फेज, एक बैकग्राउंड फेज। एक यूजर फेज को बोलते हैं पेज लाइफ साइकिल, और बैकग्राउंड फेज को बोलते हैं एप्लीकेशन लाइफ साइकिल। इसलिए पेज लाइफ साइकिल हर बार फायर होता और बैकग्राउंड लाइफ साइकिल एक ही बार फायर होता। इसलिए बोलता है हर रिक्वेस्ट पे एक नया ऑब्जेक्ट बनता। तो क्या अंतर है बेटे स्टैटिक कंस्ट्रक्टर और कंस्ट्रक्टर में?